Good morning, student. Today we will read chapter number 6 in civics. Understanding advertising. Aisha Bhimani is a 32 years old housewife residing in Delhi. To ease her kitchen work, she wants to buy a food mixture. However, she does not know which is the best brand available in the market. So, she look up the ads in the local newspaper. There she see an ad of a mixture which claim that it is the best brand in terms of price and features. It also say that a juicer and dry grinder come obviously free with the purchase of the mixture. Excited at the offer, she visit the nearest showroom and purchase it. What make Aisha go for the particular brand? It is the advertisement in the newspaper. ईशा बेमानी एक 32 ईयर की हाउसवाइफ हैं जो दिल्ली में रहती हैं। उन्हें अपने किचन के काम के लिए एक फूड मिक्सचर लेना है। इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी कि कौन सा बेस्ट ब्रांड है, तो उन्होंने जो है एड देखा एक लोकल न्यूज़पेपर में। उन्होंने देखा कि उसमें जो मिक्सचर का ऐड दिया हुआ है वो यह बताता है कि उनका जो ब्रांड है वो बहुत ही बेस्ट है, और जब आप उस मिक्सचर को लेंगे तो उसके साथ जूसर और ड्राई जो ग्राइंडर है वो फ्री है। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने नियरेस्ट जो उनके घर के पास शोरूम था वहां गई और उस मिक्सचर को परचेस कर लिया। तो यहाँ पर हमें क्या है कि आयशा क्या ऐसा हुआ कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड का मिक्सचर खरीदने चली गई। क्या था? एडवर्टाइज उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा जिससे उन्हें सारी जानकारी प्राप्त हुई। What is advertising? Advertising is a form of communication with the seller of a product and its buyer. An advertisement is used to persuade an audience to buy its product or service and thus promote business. Advertising messages are usually paid for the sponsor and view via various type of media such as magazine, newspaper, television, internet, text message, banner, billboard, hoarding and announcement. Thus, advertising can be defined as the act of calling public attention to one's product, service, need, etc., especially by paid announcement through the mass media. एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक कम्युनिकेशन है सेलर और बायर के बीच कि सेलर क्या प्रोडक्ट बेचना चाहता है और बायर क्या खरीदना चाहता है, उसके बीच का कम्युनिकेशन है। जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करता है बिजनेस के लिए, और जो इसे जो है एडवर्टाइज को स्पॉन्सर जो होते हैं वो इसे दर्शाते हैं और व्यूअर उसे देखते हैं। मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट, बैनर, बिलबोर्ड इत्यादि में इसे देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो एक एक्ट है पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने का अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। What is the purpose of advertising? As early as 1836, French newspaper La Presse include paid advertising in its page. This made it possible for the newspaper to lowest its price. Doing this, the readership increased, and thus there was an increase in its sale. This explains why newspaper and magazine have entire page devoted to advertisement, and why there are so many advertising on television during the telecast of a live cricket match or a TV serial. The television channel get the money to air serial and newspaper to print news from these ad. प्रारंभ में 1836 में एक फ्रेंच न्यूज़पेपर था ला प्रेस, जिसकी जो प्राइस थी वो बहुत ही लो थी।
तो उसमें सबसे पहले एक ऐड दिया गया जिससे पढ़ के जो है उनकी सेल में, न्यूज़पेपर की सेल में भी इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई। इससे ये पता चलता है कि न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनसे, या टेलीविज़न में जो होते हैं उनसे जो है ये सीरियल के बीच में ऐड दिए जाते हैं जिनसे कि उनकी सेल जो होती है वो इंक्रीमेंट होती है। In today's world, more or more goods are being consumed. Hence, there is a big competition among business houses to bring out more and more product to different kinds. Advertising become an initial features here. We as consumer look out for them to know about new product and service. An advertisement on television of a new face cream that claim to make you feel to make a purchase does not it. You come to know a new health drink with a promise to make you stronger and taller, and your father gets it for you. Your mother is informed about a new kitchen spice and does go for it. You too excited with the advertisement of a new serial for children that is to be aired on television soon. आज का जो समय है वर्ल्ड में, वो बहुत सी उसमें चीज़ें जो हैं अधिक से अधिक कंज्यूम हो रही है। इस समय जो है बिजनेस में एक बड़ा कंपटीशन है कि अधिक से अधिक डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट जो है मार्केट में है, और उनका और एडवर्टाइजिंग जो फीचर्स है वो यहाँ पर हमें यही दिखाती है। कंज्यूमर को ये बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस में क्या स्पेशल है। जैसे कि आपको टीवी सीरियल के बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यू फेस क्रीम है, इसका उपयोग करने से आप का जो कलर है वो फेयर हो जाएगा, या मार्केट में एक नया हेल्थ ड्रिंक आया है जो प्रॉमिस करता है कि आप स्ट्रॉन्ग और टॉलर हो जाएंगे। तो आपके पापा वो ऐड देखकर उससे सेटिस्फाई होकर आपके लिए ले आते हैं, या आपकी मदर ने अपने किचन के लिए कोई नया स्पाइस मसाले लिए हैं ऐड देखकर। तो इससे जो है ये हम सब टीवी सीरियल के बीच में जो ऐड आते हैं उन्हें देखकर या न्यूज़पेपर मैगजीन में पढ़कर हम उसका उपयोग करते हैं। लेट अस कंसीडर द रीज़न ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है एडवर्टाइजमेंट का। व्हेन वन इज in a startup mode, new product or service is being introduced, one need to let people know about it. जब कोई नई सर्विस स्टार्ट होती है तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है ताकि लोग उसके बारे में जान सके। देन देयर इज ए स्टिफ कंपटीशन, द सेम प्रोडक्ट और सर्विस इज बीइंग गिवन बाय फ्यू अदर्स, वन नीड टू कन्विंस द कंज्यूमर दैट वन प्रोडक्ट इज यूनिक। इस समय जो है, इस समय बहुत ही कठोर कंपटीशन चल रहा है। सेम प्रोडक्ट के कई सारे एक ही चीज़ के कई प्रोडक्ट हैं अलग अलग कंपनियों के, तो हर कंपनी ये कन्विंस करती है कंज्यूमर को कि उनका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से यूनिक है। Everyone know that brand like Nike, Woodland and Bata have some quality associated with them. One promote one's product, creating a brand आइडेंटिटी। सभी ये जानते हैं कि नाइक, वुडलैंड या बाटा, इनकी एक स्पेशल उनमें एक ब्रांड है, तो हर कोई इस तरह अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देते हैं। Advertising is a powerful tool in persuading the public to change their attitude and behavior. This is done by social advertisement. Advertising एक powerful tool है जिससे कि पब्लिक को राजी किया जा सकता है चेंज करने के लिए उनके एटीट्यूड और बिहेवियर को। ये एक सोशल एडवर्टाइजमेंट से ही संभव होता है। एडवर्टाइजिंग आर सोर्स ऑफ मनी फॉर मैनी न्यूज़पेपर एंड टीवी सीरियल। एडवर्टाइजमेंट एक मनी का सोर्स भी है न्यूज़पेपर और टीवी सीरियल्स में। वेरियस वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या क्या वे हैं? दिस इज ऑलवेज इंटेंस कॉम्पिटिशन टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस। द मैन्युफैक्चरर्स हैव टू package their product and service well so that the consumer
tempted by them. Hence, they hire the service of specialized advertising agency to market their product. These agency promote to product or service by presenting them in such a way that they reach out of maximum number of consumer. For effective advertising, different type of technique are used. ये जो समय है, इस बड़ा कंपटीशन का समय है सेल और प्रोडक्ट के लिए अपनी सर्विस को, तो जो प्रोडक्ट होते हैं मैन्युफैक्चर वो इस तरह पैक किए जाते हैं कि आपको प्रलोभन दे सकें कि आप उन्हें खरीद लें, और इसके लिए जो कंपनीज होती हैं वो हायर करती हैं सर्विस या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, जो मार्केट में उसका प्रचार करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं और आप तक जो है पहुंचते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, और फिर उन्हें कंज्यूमर जो है उन्हें खरीदता है। इसके लिए बहुत सी टेक्निक जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, डिटरमिनिंग द टारगेट ऑडियंस टू मार्केट ए प्रोडक्ट वन the most important task in advertising. What is the target audience? In advertising, a target audience is a specific group of customer at which the message is aimed. A target audience can be people of a certain group, age group or gender. Say a pimple control cream will aim at teenager and an anti-aging cream will aim at man or woman in their 30s and 40s. टारगेट ऑडियंस को निर्धारित करना जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मेन इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। अब ये टारगेट ऑडियंस क्या होती है? ये एक स्पेशल एज के ग्रुप के कस्टमर होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि पिंपल कंट्रोल क्रीम का जो एडवर्टाइजमेंट है वो केवल टीनेजर को ही प्रभावित करना उनका एम है, और एंटी एजिंग क्रीम जो है वो उन मैन और वुमेन के लिए है जिनकी एज 30 to 40 हो। हाईलाइटिंग द यूनिक सेलिंग पॉइंट, advertising repeat the quality of the product or service so that the consumer being to relate to them and create an image. Thus, Lifebuoy soap is target at children with its special features of killing germ. Lux soap is target at women who want to looking beautiful. Again, there are many shampoo manufacturers competing with each other. Each shampoo manufacturer involve hair expert and celebrity that have thick and lustrous hair to advertise their product. This confuse you. All brand of shampoo look equally good. Finally, you pay careful attention to the attributes of the shampoo and select the one that suited your requirements. If your hair is damaged, you opt for the shampoo that offer damage therapy. Likewise, it get rid of dandruff. You can choose a different shampoo and some other shampoo if you want faster hair growth. अब अपनी जो सेलिंग पॉइंट है उसको हाईलाइट करना भी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच सके। जैसे कि लाइफबॉय जो सोप है वो चिल्ड्रन को टारगेट करता है क्योंकि उसका स्पेशल फीचर है किलिंग जर्म्स यानी कि कीटाणुओं को मारना। लक्स सोप जो है उसका टारगेट वोमेन है जो कि ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं। इसी तरह मार्केट में डिफरेंट टाइप के शैम्पू हैं जो कि सभी बहुत अच्छे हैं और कईयों में सेलिब्रिटी या एक्सपर्ट आते हैं, हेयर एक्सपर्ट जो उसका ऐड करते हैं। आपको उसमें उनको ध्यान से देखना है और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो आपको सूट करे उन्हें सेलेक्ट करना है। जैसे आपके बाल अगर डैमेज हैं तो आपको ऐसे शैम्पू को चूज़ करना है जिसमें डैमेज थेरेपी हो। आपके हेयर में अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू है यूज़ करना है। तो ये आपको इसका यूज़ करना है। गोरिल्ला मार्केटिंग, a recent advertising innovation is guerrilla marketing. Guerrilla marketing is a way to showcase your business or product by unconventional method that often cost little to no money. This involves unusual approach such as stage performance in public place like mall and giveaway of product such as car. There is also an increasing trend of
interactive advertising where consumers are invited to vote through text messages and social networking sites such as Facebook. Guerrilla marketing एक मार्केटिंग का तरीका है जो आपके बिजनेस के प्रदर्शन के लिए है. इसमें जो है वो इस मेथड का यूज किया जाता है कि आपको कम से कम या बिल्कुल भी मनी की आवश्यकता ना हो. इसके लिए जो है इसकी मार्केटिंग के लिए स्टेज परफॉर्मेंस की जाती है पब्लिक प्लेस जैसे मॉल में या कार में, और इसके लिए लोगों से राय भी मांगी जाती है वोट के थ्रू, जैसे टेक्स्ट मैसेज या सोशल नेटवर्किंग साइट पर. एसोसिएशन विद brand ambassador: when a famous cricketer promote a soft drink or a movie star endorse a certain brand of shoes, you find the product desirable and want to imitate the famous personality. These person who endorse certain product are called brand ambassador. We know these person for some special attribute and trust their judgment when they endorse a product and we go for it. जब कभी कोई फेमस क्रिकेटर जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट कर रहे हैं या कोई मूवी स्टार जो है वो शूज को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी भी इच्छा होती है कि हम उस फेमस पर्सनैलिटी की तरह ही हम उस चीज को लें. तो जो इन प्रोडक्ट को का समर्थन करते हैं उसे ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है. और इन जो पर्सन होते हैं इनके गुणों और आपकी विश्वता के कारण आप उसके जजमेंट को ही आप समर्थन करते हैं और उस ब्रांड या उस चीज की तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं. ब्रांड बिल्डिंग: A brand is a name, term, sign, symbol or design that identify the good and service of one seller as distinct from those other seller. With an increase in the number of manufacture of a product in the number of manufacture of a product in the market, the battle of customer intensifies day by day. So it is important for a manufacturer to build its own brand. The special attribute of features of a product help to create a brand image. A brand is a source of promise for quality to you. एक ब्रांड जो होता है वो एक नेम, साइन या सिंबल या कोई डिजाइन होता है जिसके लिए जो व्यक्ति वो उसको और प्रोडक्ट से अलग दिखाता है और जो व्यक्ति है उसको उसी ब्रांड को खरीदने की चाह रखता है. और इसलिए जो है मैन्युफैक्चर जो होता है उसमें भी इंक्रीज होता है, उसकी सेलिंग में भी इंक्रीज होता है. इस समय में जो है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना इस भीड़ में, जब एडवर्टाइजिंग का काफी तेज जमाना है तो इसमें हमें अपने ब्रांड को स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात होती है. इसलिए जो ब्रांड बिल्डिंग है वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक ब्रांड ही है वो आपको प्रॉमिस करता है कि उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है. Advertising media: various means by which promotional messages are communicated to the public using word, speech and picture is an advertisement media. Beside the radio, television and newspaper, advertisement reaches through message on mobile, pamphlet, keep inside newspaper and magazine, door-to-door delivery boy, etc. Paying people to hold sign to the oldest form of advertising. Wall of buses and other vehicles are popular media for एडवर्टाइजर. जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिक के पास तक पहुंचना किसी वर्ड या स्पीच या पिक्चर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट मीडिया कहलाता है. जैसे डेली रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर पे भी हम लोग देखते हैं. इसके अलावा मोबाइल में पम्पलेट जो है, डोर टू डोर डिलीवरी बॉयज जाते हैं मैगजीन के द्वारा, ये सभी जो है एडवर्टाइजिंग मीडिया है. और सबसे जो पुराना एडवर्टाइजिंग का तरीका है वो है कि व्हीकल्स पे जैसे बसों में एडवर्टाइज करना, उनकी बसों की वॉल पे लगा देना कुछ पेपर, जो भी प्रोडक्ट का
पेपर है। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मीडिया इंक्लूड वॉल पेंटिंग, हेल्डिंग, प्रिंटिंग पम्पलेट्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, सिनेमा, टेलीविजन, वेब बैनर, मोबाइल, वेब पॉप्स, बस स्टॉप, बेंचेस, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन फ्लाइट एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। ये सभी जो है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मीडिया इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। वॉल पेंटिंग, हेल्डिंग, प्रिंटिंग पम्पलेट्स इत्यादि। TV commercial are considered as most effective commercial advertising method. Most of the television commercial features a song or jingling that viewers related to the sub quantity to the product. टीवी कमर्शियल जो है वो बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव कमर्शियल एडवर्टाइजिंग मेथड है। इसमें जो है टीवी में कोई सॉन्ग एडवर्टाइज से रिलेटेड या कोई विज्ञापन गीत चलता है जो व्यूअर को रिलेट करता है अपने प्रोडक्ट के लिए। Informal, a long format television commercial is a new type of advertisement today. It's typically of 5 minutes or longer. It presents a significant amount of information, is an attempt to promote a product. Here people are coaxed to make an impulsive purchase through the advertised toll-free telephone number or website. Informal ये एक टेलीविज़न कमर्शियल एक नए तरीके का एडवर्टाइजमेंट है। आजकल इसमें 5 मिनट या उससे ज़्यादा जो है आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिया जाता है। टेलीफोन पर या वेबसाइट में एक टोल फ्री नंबर होता है जिसमें कि जो कंज्यूमर होता है वो पूरी जानकारी उस प्रोडक्ट की प्राप्त कर सकता है और उसका जो एडवर्टाइज करने वाले होते हैं वो एक तरह से लोगों को अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं कि जो लोग कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को स्वच्छंद रूप से खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ प्रमोशन दैट यूज द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आप सभी जानते हैं ये इंटरनेट के थ्रू होती है जो कि इस समय बहुत ही फेमस है। प्रेस एडवर्टाइजिंग use newspaper, magazine, yellow pages, etc. A form of press advertising is classified advertising which allow private individual or companies to purchase a small space for advertising a product or service at a low fee. Advertising of job vacancy are also found here. Press advertising जो है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन या येलो पेजेस में दी जाती हैं। ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग होती है। ये कंपनियों का प्रचार करती है और ये न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलती है। इसी में ही आपको जॉब वैकेंसी भी यहीं पर आपको इसी क्लासिफाइड वैकेंसी में ही दिखाई देती हैं। होल्डिंग आर द large structure which display advertisement to passing pedestrians and motorists traveling through public place such as railway station, shopping mall, offline building etc. होल्डिंग जो होती हैं वो लार्ज स्ट्रक्चर होती हैं जो कि पैदल चलने वाले लोग भी उसे आसानी से या मोटर पे चलने वाले लोग, गाड़ियों में चलने वाले लोग, पब्लिक भी आसानी से देख सकते हैं। ये सभी जो होल्डिंग होते हैं ये पब्लिक प्लेस में लगाए जाते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल या ऑफिस बिल्डिंग इत्यादि। टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कैन बी commercial or non-commercial. Commercial advertising seek to sell product or service. All this while we had been talking about commercial only. Advertising जो होती है वो दो तरह की होती है, commercial और non-commercial. Commercial advertising में जो है वो केवल सेल प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करने के लिए ही उसको मंगाई जाती हैं। नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इंक्लूड दोज रिलेटेड टू सोशल इशू। जो नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती है उसमें वो रिलेटेड होती है सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू, वेलफेयर प्रोग्राम, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल एजेंसी। इन्हें कहा जाता है social advertising or political advertising. Social advertising attempt to inform, motive and educated people. It include advertising for social issues like community service, energy conservation, recycling and public health. Many commercial advertising also promote social message, creating awareness among India message about key democracy issues.
सोशल एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो एजुकेटेड पीपलों को लोगों को मोटिवेट करती है, और इसमें सोशल इश्यूज होते हैं जैसे एनर्जी कंजर्वेशन या रिसाइकलिंग करना, पब्लिक हेल्थ, इन सबको इसमें शामिल किया जा सकता है। कमर्शियल जो बहुत सी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो प्रमोट करती हैं सोशल मैसेज को, जैसे for example Tata Tea Jago Ray campaign make people aware about exercising the right to vote. Amir Khan, a movie star of the Hindi film industry, is a brand ambassador for the Ministry of Tourism and come in an advertisement for Atithi Devo Bhava. जैसे कि टाटा टी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जागो रे से, तो उसमें हमें अपने वोट का कैसे यूज़ करना है इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया था। आमिर खान जो एक मूवी स्टार है वो एक ब्रांड एम्बेसडर हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, और उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था अतिथि देवो भव। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज about using the media and public place to inform people about political agenda and programs. This type of advertising gained momentum during the time of election, and example of this was the announcement of Atal Bihari Vajpayee government plan to go for early election in 2004. पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट वो होता है जिसमें मीडिया जो है पब्लिक प्लेस पे लोगों को इन्फॉर्म करती है पॉलिटिकल एजेंडा और उनके प्रोग्रामों के बारे में। ऐसे जो कैंपेन होते हैं वो इलेक्शन के समय पर लगाए जाते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 2004 में कि उनके इलेक्शन में क्या क्या उनकी गवर्नमेंट के प्लान है वो उन्होंने उसमें बताए थे। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, अब हम पढ़ेंगे कि इसके नेगेटिव इफेक्ट एडवर्टाइजिंग के क्या हैं। एडवर्टाइजिंग हैव सम गुड पॉइंट्स बट इट हैज सम पोटेंशियली हार्मफुल एस्पेक्ट टू। इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं तो कुछ ये जो है संभावित इसमें हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। एडवर्टाइजमेंट कैन बी deceitful. Many advertising to deceitful propaganda about their product to increase their sales. Sometimes they try to tempt other brands or mock at other to promote their own. Such deceitful advertisement are called spoof ad. कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे साथ छल भी करते हैं। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाते हैं जिससे कि इनकी सेल इंक्रीज हो जाए, तो और वो किसी अदर ब्रांड को या ट्राई करते हैं कि जो अदर ब्रांड है वो उससे ज़्यादा इनका ब्रांड बिके। तो इस तरह के जो छल पूर्वक एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन्हें स्पूफ एड कहते हैं। हिडन कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी एंड दैट मनी कम from you the consumer. When you buy a nicely packed product or a branded product, you end up paying such more than its value. A local product would have the same value for a cheaper cost. Smaller companies that do not have the fund for advertisement are unable to compete with the big brand names and shut shop. Next time you see an advertisement and go shopping, ask yourself if you really need that product. Also ask yourself if it is worth the cost. कुछ एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं वो उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे जो ब्रांड होते हैं, ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है या वो बहुत अधिक होती है, लेकिन कुछ लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, उनकी प्राइस बहुत कम होती है, लेकिन वो भी सेम ही फीचर्स होते हैं उनके, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के ना होने के कारण बिग जो ब्रांड होते हैं उनसे वो कंपटीशन नहीं कर पाते, लेकिन उनकी सेम प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट टाइम जब आप उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि हमें जो है हमारे पैसे बेकार गए, तो हमें कभी कभी सोच समझ के ही
शॉपिंग करनी चाहिए। ए मेजर नॉनसेंस, मास मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो एंड द इंटरनेट हैव बिकम नथिंग मोर देन व्हीकल्स फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज सीज ए मेजर नॉनसेंस बाय मैनी एज दे आर फोर्स्ड ऑन देम while viewing TV programs. Repeating telecast for advertisement on television on web pops-ups can be very irritating at time. कभी कभी क्या होता है कि हम जो हैं ये एडवर्टाइजमेंट इतनी बार देख लेते हैं कि हम इरिटेट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी टीवी पर एक ही ऐड हर 2 मिनट बाद बार बार आता रहता है, तो हम लोग जो हैं इरिटेट हो जाते हैं। तो ये एक नॉनसेंस रिएक्शन है कि हमें बार बार वही ऐड बार बार दिखाया जाता है, जिससे कि टेलीविज़न पर या वेब उस पर, तो इससे हम इरिटेट भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं गलत हैं। Okay students, this chapter is finished. Goodbye.